Good morning everyone. Students, this is Anju ma'am here, and today again we are going to study a new chapter, chapter 10, Our Feathered Friends. So let's begin from here. Students, you all must have seen birds around your houses, different kind of birds around your houses. In the same way, here also some birds, the images of the birds are given and you have to identify the names of the birds and write here. So this is hen, this is crow and this is sparrow. Now, let us come to the chapter. Students, you just keep your fingers while I'll be reading and I'll be telling you the meaning of some hard words coming in this chapter. So let us begin. In the world of animals, birds are unique creatures because they have feathers and wings on their bodies that help most birds to fly. Animals के world में, students, you must have known this. In the last chapter we have studied about animals. Now in this chapter we'll be studying about birds. तो एनिमल्स के वर्ल्ड में बर्ड्स जो है क्या ऐसे यूनिक क्रिएचर्स होते हैं कि अनोखी एक लिविंग बीइंग होता है जिसके पास फेदर्स होते हैं और विंग्स होते हैं उनके बॉडीज पे जो फ्लाई कर सकते हैं. एनिमल्स तो फ्लाई नहीं कर सकते बट बर्ड्स कैन फ्लाई. सो लेट अस फाइंड समथिंग मोर अबाउट बर्ड्स. सो लेट अस सी व्हाट मोर थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर अबाउट बर्ड्स. सो the first thing we'll be learning in this chapter is common features of a birds. Second, parts of a bird's body, that is bones, feathers, wings and beaks. Third, what do birds eat? Fourth, we'll be learning sounds of birds. Fifth, migratory birds. And sixth, care for birds. So let us see further. First is common features of birds. यानी उसके जो common features क्या है, उनकी जो विशेषताएं जो है क्या common चीज़ें होती हैं उनके में. So take a look at different birds like crows, sparrows, parrots, manna and other birds around us. ये सारे birds को आपको एक बार देखना है जो आपके घर के आसपास आपको दिख जाएंगे. They all look different from one another, but they all have some common features. ये सारे एक दूसरे से अलग दिखते हैं लेकिन सब में कुछ ना कुछ common features ज़रूर होता है. Now coming to the first part, parts of a bird's body. Birds have a head, a trunk and a tail. They also have two wings which help most birds to fly and two legs that help them walk, run and sit on the branches of trees. Birds का एक head होता है, trunk होता है और tail होता है. ठीक है, trunk है उनका जो body part. They also have wings. तो उनके दो wings होते हैं जो उनको fly करने में help करते हैं और दो leg होते हैं जो उनको walk करने में, run करने में and even they help is to sit on the branches of the trees. Now the legs and feet have sharp claws. ये जो legs और feet जो होते हैं उनके sharp claws होते हैं. claws का मतलब होता है पंजा. ठीक है, उनके sharp claws होते हैं which help them catch prey and hold on to the branches while sitting or perching. जो help करते हैं prey को catch करने में. prey का मतलब होता है शिकार करने में help करते हैं, उनको catch करने में help करते हैं और branches पे बैठने पे भी help करते हैं ना. They hold the branches for sitting or perching. Perching means sitting on the branches. Now next topic, bones. This is the part of the bird. It is the part of the bird's body. Bones of birds are hollow and light. This allows them to fly easily. Birds के जो bones होते हैं वो बहुत hollow होते और light होते हैं. यानी hollow यानी bones के अंदर कुछ नहीं होता है, खाली होता है और वो light weight होते हैं, एकदम हल्के होते हैं उनके bones, जिसके कारण birds fly कर सकते हैं. Now next, but flightless birds like penguins and ostriches have heavier bones so they cannot fly. लेकिन जो flightless birds होते हैं, flightless birds का मतलब होता है जो उड़ नहीं सकते, जैसे कि penguin है, ostrich है, उनके bones heavy होते हैं जिसके कारण वो fly नहीं कर सकते. The legs of ostriches have strong bones which help them run fast. है ना, ostrich के जो legs होते हैं वो बहुत strong bones से बने होते हैं जिसके कारण वो काफ़ी तेज़ दौड़ सकते हैं. ठीक है. Now coming to the next body part of bird, feathers. feathers क्या होते हैं मतलब पंख. feathers have distinct feature in birds. These bones and muscles are covered with feathers. ठीक है, feathers ये मतलब ये feathers जो होते हैं डिफरेंट फीचर होते हैं birds में, सबके अलग अलग कलर के अलग अलग टाइप के feathers होते हैं. उनके जो bones होते हैं और जो muscles होते हैं वो feathers के हेल्प से कवर्ड होते हैं. यानी feathers जो होते हैं बॉडी के, birds बॉडी के bones को और muscles को कवर करके रखते हैं. Feathers are important for flying and also for protection against the rain, the heat of the sun or the cold weather. feathers जो हैं
वो उनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में भी, और बर्ड्स को वो हीट, रेन, सन से, कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट भी करते हैं. बर्ड्स हैव 3 different types of feathers on their body. Now birds are having 3 different types of feathers. Now let's see. The down feathers cover a bird's body and keep it warm. Down feather होता है जो उनके बर्ड की बॉडी को कवर करता है और उनको वार्म रखता है, गर्म रखने में बॉडी को हेल्प करता है. सेकेंड है बॉडी feathers give shape to a bird's body. बॉडी feather जो है वो बर्ड्स की बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है. ठीक है. नेक्स्ट है flight feathers cover the wings and tail of a bird and help it to fly. Flight feathers जो है उनके विंग्स को कवर करता है और टेल को कवर करता है और एक बर्ड को हेल्प करने में हेल्प करता है. ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ 3 feathers: डाउन feather, बॉडी feather एंड फ्लाइट feathers. ठीक है, डाउन feather, बॉडी feather एंड फ्लाइट feather. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. द टेल feathers look similar to wing feathers. टेल feathers जो होते हैं वो विंग feathers के जैसे ही दिखते हैं. They are arranged in the shape of a fan and they help in changing directions while flying. These feathers, tail feathers जो होते हैं वो एक फैन के शेप में अरेंज किए जाते हैं और जब वो फ्लाई करते हैं तो they help in changing the directions. बर्ड्स को डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं. Birds usually have 6 pairs of tail feathers. बर्ड्स के 6 pairs होते हैं tail feathers के. ठीक है. Now wings. All birds do not fly, but all of them have wings. There is difference in the shape of wings of birds. सारे birds fly तो नहीं कर सकते, लेकिन wings सबके पास होते हैं और उनके शेप जो wings का जो शेप होता है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है. The falcon has sharp tipped wings that enables the bird to fly great speed. फाल्कन जो बर्ड है, एज यू कैन सी इन द इमेज हियर, फाल्कन बर्ड जो है उनके पास शार्प टिप विंग्स होते हैं जो बर्ड्स को पूरे स्पीड से फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. द विंग्स ऑफ एल्बाट्रॉस आर वेरी लॉन्ग एंड नैरो. दिस हेल्प्स देम फ्लाई हायर एंड लॉन्गर डिस्टेंसेस. जो एल्बाट्रॉस जो बर्ड है उसके जो विंग्स होते हैं वो लॉन्ग और नैरो होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं और नैरो साइज़ के होते हैं जो इनको ऊंची हाइट तक फ्लाई करने में और लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. बीक्स. Birds do not chew their food. They either grind or tear food into smaller pieces and swallow. Birds जो है वो फूड को च्यू नहीं करते, उसको ग्राइंड करते या तो फिर उसको टीयर करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करके उसको स्वेलो करते. They don't chew it as they don't have teeth. So flesh-eating birds like hawks, owls and eagles have sharp and hooked beaks to rip and tear the food. ये जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, हॉक्स है, आउल्स है, ईगल्स है, इनके शार्प और हुक्ड बीक्स होते हैं, है ना, शार्प पॉइंटेड बीक्स होते हैं जो फूड को कैच करके टीयर करने में हेल्प करते हैं. सीड ईटिंग बर्ड्स हैव कोन शेप्ड बीक्स दैट आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक थ्रू द शेल ऑफ द नट्स. नाउ जो बर्ड्स, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके कोन शेप्ड के बीक्स होते हैं जो शेल, जो नट्स होते हैं ना, नट्स के जो शेल होते हैं उनको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, उनको तोड़ने में हेल्प करते हैं. दे हैव अ कोन शेप्ड बीक. नेक्स्ट इज geese and ducks have flat beaks that have strainers to separate food from the water. और जो geese और जो ducks होते हैं उनके फ्लैट बीक्स होते हैं, एज यू मस्ट हैव सीन द बीक ऑफ डक, जिसमें 2 होल्स होते हैं, दैट इज यूज्ड टू स्ट्रेन और टू सेपरेट फूड फ्रॉम द वाटर. यानी कि उसमें उनको फूड जो वो खाते हैं उससे उस होल से वाटर जो है सेपरेट हो जाता है, बाहर आ जाता है. दैट इज द बीक इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेनर्स, है ना, द बीक विद द स्ट्रेनर्स में जो होल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेनर्स. नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हाट डू बर्ड्स ईट? Birds eat various things like seeds, fruits, nectar, insects, worm, fish, etc. We can categorize them in the following groups. Birds जो है बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, वो सीड्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, नेक्टर दे ईट, इंसेक्ट्स, वर्म, फिश, ये सारी चीज़ें वो खाते हैं. इवन वी कैन कैटेगराइज, हम उनको उनके ग्रुप्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज सीड ईटिंग बर्ड्स. Birds like pigeons, cockatoos, canaries, finches, doves
पैरट्स, क्वेल, बजीज ईट सीड्स एंड नट्स। ये सारे जो बर्ड्स हैं वो सीड्स और नट्स खाते हैं। नेक्स्ट इज फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। सम फ्रूट ईटिंग बर्ड्स आर पैरट्स, अमेरिकन रॉबिन, blaze-winged parakeet, blue cotinga, and grey catbird. So these birds they eat flesh of the fruit. Sip the juice or bone, और उसके जूस को सिप करते हैं, पीते हैं, है ना। वो फ्रूट भी खाते हैं, फ्लैश ऊपर का जो फ्रूट का जो फ्लैश होता है, छिलका जो होता है फ्रूट का, वो भी खाते हैं और उसके जूस भी पीते हैं। स्मॉल फ्रूट्स आर इवन swallowed whole, और छोटे छोटे फ्रूट्स को पूरा swallow कर जाते हैं। थर्ड इज नेक्टर फीडिंग बर्ड्स। दिस बर्ड्स फीड ऑन द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। दे आर द banana quit, hummingbird, hooded oriole, sunbird, little spider hunt, and mountain black eye. So these are the birds, they feed on nectar from flowers. वो फूल के जो नेक्टर होते हैं, जो जूस होता है, उस पर फीड करते हैं। नेक्स्ट इज इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक swallow, kingfisher, cuckoo, woodpecker, black drango, brown creeper, common black hawk, and crowned hornbill, etc. eat insects. So these are the birds that like to eat insects. कीड़े खाते हैं। Worm eating birds, birds like American woodcock, black-billed plover, Malayan night heron, killdeer, eastern screech owl, etc. are worm eating birds. And these birds है ना, ये सारे जो birds है, they like to eat worm, कीड़े खाते हैं ये भी, है ना। Now flesh eating birds, birds like American fish, eagle, puffin, bald eagle, black skimmer, black vulture, and grey heron. So these birds they like to eat flesh of animals, dead animals. Flesh eating birds, birds like eagles, hawks, falcons, owls, vultures are carnivores and eat flesh. They are also called birds of prey. ये सारे जो birds हैं वो carnivores हैं and they eat flesh of other dead animals, and they are also called birds of prey. ठीक है। और so these are the different type of animals. Now next, coming to the next paragraph, sounds of birds. These sounds of birds, each and every birds, they produce different kind of sounds. When we wake up early in the morning, we get to hear the sounds of different birds. Birds make different types of sounds for different purposes. जब आप सुबह उठते हो तो आपको birds की अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और हर बर्ड जो है डिफरेंट टाइप्स की आवाज़ निकालता है जिसका अलग अलग पर्पस होता है। ठीक है। फर्स्ट इज अलार्म कॉल्स। अलार्म जैसे आवाज़ें निकालते हैं बर्ड्स जो, दिस कॉल्स आर शॉर्ट, शार्प एंड piercing sounds. They are used to signal other birds of some danger. ये जो अलार्म कॉल्स होते हैं ना, वो बहुत शॉर्ट होते हैं, शार्प होते हैं, पियर्सिंग होती है। पियर्सिंग मतलब बहुत तीखी आवाज़ होती है बर्ड्स की। ये किसी को सिग्नल देने के लिए है कि आप किसी डेंजर में पड़ सकते हो या कहीं कोई डेंजर है, तो बर्ड्स ऐसे आवाज़ निकालते हैं ताकि जो अदर बर्ड्स है वो सिक्योर हो जाए, सेफ हो जाए, है ना, उनको डेंजर का पता चल जाए, उनको अनाउंस करते हैं, डेंजर के बारे में अवेयर कराते हैं। Next, contact calls. These calls are used when they fly in the flocks or want to signal one another. They are called chirps, chips and buzzes. ये calls तब प्रोड्यूस करते हैं birds कि when they fly in a flock. फ्लॉक का मतलब ग्रुप में जब फ्लाई करते हैं बर्ड्स और वो किसी दूसरे बर्ड्स को सिग्नल देना चाहते हैं तो उसको चिर्पिंग बोलते हैं। बर्ड्स का चिर्पिंग, चहचहाना, चिप्स, बजेस, है ना, बजिंग करते हैं, है ना। तो दिस साउंड्स इज कॉल्ड एज अ कॉन्टेक्ट कॉल्स। These sounds are loud enough to be heard but not as loud as alarm calls. ये साउंड्स बहुत ही ज़्यादा लाउड होते हैं, है ना, दूर तक भी सुना जा सकता है, लेकिन अलार्म कॉल्स की तरह लाउड नहीं होते, क्योंकि अलार्म कॉल्स जो होता है बहुत तीखी आवाज़ होती है बर्ड्स। थर्ड इज फ्लाइट कॉल्स। दिस कॉल्स आर गिवन ओनली ड्यूरिंग फ्लाइट. दिस कॉल्स might be slightly musical or sometimes might be similar to contact calls. ये कॉल्स जो है वो सिर्फ फ्लाइट के दौरान किया जाता है, यानी उड़ने के समय जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं उस समय ये आवाज़ प्रोड्यूस होती है। और ये जो कॉल्स होते हैं वो एक स्लाइटली म्यूजिकल होते हैं, म्यूजिक के फॉर्म में होता है, या समटाइम्स इट मस्ट बी सिमिलर टू कॉन्टेक्ट कॉल्स के जैसे भी
होते हैं, जैसे कि इट इज़ यूज टू अनाउंस देयर प्रेजेंस टू द अदर बर्ड्स व्हाइल फ्लाइंग। ये साउंड तब प्रोड्यूस किया जाता है जब बर्ड्स जो हैं दूसरे बर्ड्स को अनाउंस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि, है ना, कि वो बर्ड्स जो फ्लाई कर रहे हैं ना, तो फ्लाई करने के दौरान, उड़ने के समय वो ये सारे फ्लाइट कॉल्स साउंड्स निकालते हैं। Last is songs. These are usually more musical and longer sounds. Birds use this sound to attract other birds, drive away enemies and announce their areas. अब ये जो birds हैं वो म्यूजिकल होते हैं, लॉन्गर होते हैं, ठीक है, एंड ये साउंड्स जो होते हैं ये दूसरे बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, एंड दे ड्राइव अवे एनिमीज एंड अनाउंस देयर एरियाज, और एनिमीज को दूर भगाने के लिए और ये अनाउंस करने के लिए अपने एरिया के जितने भी बर्ड्स उनको अनाउंस करने के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉन्ग साउंड, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ।